So greeting once again. तो और एक बार सभी को शुभेच्छा। Yeah, wishing you a very blessed and fruitful New Year 2021. आप सभी को ये नया साल 2021 अच्छा हो, सफल देने वाला हो। So this morning I want to speak about consecrating your temples. और इस सुबह मैं आपको उस बात के बारे में बताने वाला हूँ, अपने मंदिर को अर्पित करो या उसे शुद्ध करो। Coming back to God, returning to God. और परमेश्वर की ओर अपना मुंह फेरना, परमेश्वर के वापस लौटना। You know, recently my daily reading was in the Old Testament was from 2 Chronicles. और हाल ही में जो मेरा बाइबल वचन जो पढ़ना था वो 2 इतिहास की किताब से था। And I was fascinated by the aspect of the temple that comes in that book. और उस किताब में जो मंदिर, परमेश्वर के भवन के बारे में जो बातें हैं, उससे मैं काफी प्रभावित हुआ। The book begins with the building of this magnificent edifice, the temple of God. और किताब की शुरुआत में ही मंदिर बनाने को जो काफी महान ऐसा विशाल ऐसा था उसके बारे में लिखा है। And as you go through the book, you see how the kings who ruled the nation of Israel, they found the secret of God's blessing and victory hidden in the temple. और जैसे इस किताब को आप पढ़ते जाते हो, उस समय के राजा जो शासन करते थे, उन्होंने उस रहस्य को कैसे जाना, और जब वो मंदिर की बातों को लेकर आगे बढ़े तब कैसे उन्होंने विजय हासिल किया, एक प्रकार से सफलता हासिल की। You know, 2 Chronicles has the word temple comes more than 150 times in that book. और 2 इतिहास की किताब में भवन या परमेश्वर का मंदिर, यह जो शब्द है वो करीबन 150 बार आता है। The only book that deals with so much of God's house, the temple of God. और ऐसा एक ही किताब है जिसमें परमेश्वर के भवन या मंदिर को लेकर बहुत सारी बातें वहां पर है। So let's read a portion of the scripture and get into the word. तो आइए हम बाइबल का एक अंश पढ़ेंगे इस अध्याय से और आगे बढ़ेंगे। 2 Chronicles chapter 29 verse 1 to 6. 2 इतिहास अध्याय 29 1 से 6 वचन। It says Hezekiah was 25 years old. He was very young. It says when he became the king and he reigned in Jerusalem 29 years. His mother's name was Abijah, daughter of Zechariah. And then it says he did what was right in the eyes of the Lord, just as his father David had done. जब हिजकिया राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम अबियाह था जो जकरियाह की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वैसा ही उसने भी किया। Verse 3 says, in the first month of the first year of his reign, he opened the doors of the temple of the Lord and repaired them. He brought in the priests and the Levites, assembled them in the square on the east side, and said, listen to me, Levi, consecrate yourself now and consecrate the temple of God, the God of your ancestors. Remove all defilement from the sanctuary. Our fathers were unfaithful. They did evil in the eyes of the Lord our God and forsook him. They turned their faces away from the Lord's dwelling place and turned their backs on him. तीसरे वचन से, अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उसकी मरम्मत भी कराई। तब Hezekiah stands as a very successful king like King David. और हिजकिया राजा है, वह एक काफी फलवंत या कामयाब ऐसा दाऊद की तरह एक राजा। And it says in the beginning of his reign, the first month of the first year of his reign, the first thing that he did, he opened the temple. और हम देखते हैं यहाँ पर कि अपने जीवन के पहले राज्य करने के पहले साल में पहले महीने में पहली बात जो है उसने मंदिर के द्वार खुलवाए। He kind of understood something, and the rest of his reign, 29 years of his reign, he saw the favor and the blessings of God.
और कुछ बात उसने समझी थी और उसकी वजह से जैसे वो करते गया अपने 29 साल के शासन में उसने काफी कामयाबी दिखी। And the whole of 2 Chronicles, you see people or the kings who paid attention to the temple was successful. जिन राजाओं ने उस मंदिर को लेकर उसकी बातों को लेकर जब ध्यान दिया तब उन्होंने सफलता को भी देखा। You know, whether it was Solomon, whether it was Asa the king, और भले वो सुलेमान हो या आसा वो राजा, whether it was Joash, whether it's Jehoshaphat, whether it's Hezekiah or Josiah, these kings saw, you know, something that others didn't see. और भले वो यहोशापात हो या हिजकिय्याह हो, जोसाया राजा हो और जोएश, इन सब राजाओं ने उस सफलता को देखा। All these kings paid attention to the temple. और इन राजाओं ने सभी ने परमेश्वर के मंदिर पर ध्यान दिया। They paid attention to the worship of God. परमेश्वर की आराधना पर उन्होंने ध्यान दिया। They threw out all the other worship from the land. और सारी जो दूसरी देवताओं की पूजा थी उसको उन्होंने बाहर फेंक दिया। Like Asherah poles and altars of Baal and other idols were thrown away. और जैसे दूसरी मूर्तें या अशेरा पोल या बाल की देवताएं, उन सब को उन्होंने निकाल कर बाहर कर And दिया। as they paid attention to the temple, और जैसे उन्होंने मंदिर पर ध्यान दिया, God protected them from the enemy. परमेश्वर ने उन्हें शत्रुओं से सुरक्षित रखा They won battle against the enemy. और शत्रु पर वो विजय हासिल कर पाए। They had plenty of food, wine and oil in the land. और देश में वहाँ पर बहुत सारा खाना पीना और दाख मधु और ये सारी बातें आसानी से उपलब्ध हो गई। They lacked nothing. और कुछ भी बात की कमी नहीं रही। What was the secret? तो इन सब के पीछे रहस्य क्या था? And I want you to come with me to explore about the temple. You know, the secret was that they paid attention to the house of God. और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ आइए, हम देखते हैं, खोज करते हैं क्या है वो मंदिर की बातें और रहस्य की बातें क्या है जो मंदिर को लेकर है। And is it, you know, you might ask, is it important for me as a Christian in the 21st century to pay attention like that, what they did at that time? और आप ऐसा सोचोगे, इस 21वीं सदी में क्या महत्वपूर्ण है इतना मंदिर पर ध्यान देना जैसा उन्होंने उस समय दिया था? If you look at the New Testament, it says your body is the temple of the Holy Spirit. और अगर आप नए करार में देखोगे तो वहाँ पर लिखा है तुम्हारा शरीर तुम परमेश्वर का मंदिर है। Let me show you 2 New Testament scriptures और 2 वचन मैं आपको नए करार से बताता हूँ। where Paul says to the church in Corinth, तो कोरिन्थ की कलीसिया को पौलुस बताता है in 2 Corinthians 6 verse 16, 2 कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 16वें वचन में it says, what agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। As God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। It was spoken in the context of being unequally yoked with unbelievers. और एक प्रकार से जो अन्य जाति के लोग हैं उनसे हमें बराबरी नहीं करना है, उसके बारे में उस संदर्भ में, And in that context it says we are the temple of God. और उस संदर्भ में कहा गया है कि हम परमेश्वर का मंदिर है। Then it says in 1 Corinthians 6 verse 19. और फिर 1 कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 19वें वचन में बताया है। Again the whole thing is coming, the whole theme of the temple is coming in the scripture. और फिर से वचनों में मंदिर के बारे में बात वहां पर आगे आती It है। says, do you not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit? लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, Who is in you, और जो तुम में बसा हुआ है, whom you received from God? और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है। Then it says, you are not your own.
और आगे लिखा है कि तुम अपने आप के नहीं हो। It says your body is the temple of the Holy Spirit where God lives. और वहां पर लिखा है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है जहां पर परमेश्वर निवास करता है। Hallelujah. हालेलुया। If we understand the temple of God in the Old Testament, अगर पुराने नियम में हम उस समय के भवन मंदिर को समझ जाएंगे तब we will understand our walk with God today and learn how to live a victorious life. तो परमेश्वर के साथ हमारा जो चाल चलन है उसको हम समझ जाएंगे, सीखेंगे और इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। So I want you to come with me to just explore this whole theme. तो मैं चाहता हूं कि यह जो विषय है उसको हम खोजेंगे, देखेंगे। You know, God's desire was always to live among men. और परमेश्वर की इच्छा हमेशा यह रही थी कि वह मनुष्यों के बीच अपना निवास स्थान बनाए रखे। When I say men, men and women जब मैं मनुष्यों को कहता हूँ उसका मतलब पुरुष और स्त्रियां दोनों भी। have a dwelling place with men. और मनुष्य के साथ परमेश्वर का निवास स्थान। You know, God walked with Adam and Eve in the cool of the day, the Bible says. और बाइबल में लिखा है दिन के ठंडे समय में आदम के साथ परमेश्वर चलता फिरता था। And that's why we see the first temple, you know, God in the midst of Adam and Eve as created being. और वहां पर हम पहला मंदिर या भवन देखते हैं, आदम और हवा जिसको परमेश्वर ने बनाया था उनके साथ में वह उसका निवास God and man fellowshipping with each other. परमेश्वर और मनुष्य एक दूसरे के साथ संगति कर रहे थे। Perfect union. एक बहुत ही सिद्ध ऐसा मिलन। Great fulfillment in that relationship. और पूर्णता से वहां पर एक सफलता उस रिश्ते में। That was in Genesis chapter 2. और वह उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में था। And if you look at the last book of the Bible, Revelation, the second last chapter, you know, this is what God says, you know, he was just sharing his heart. और अगर आप प्रकाशित वाक्य के आखिरी वचन में देखेंगे तो वहां पर भी परमेश्वर ऐसा ही हृदय दिखाता है। Actually, it is the last words of God. और ऐसे कहें तो यह परमेश्वर के आखिरी शब्द है। Then it says, I heard a loud voice from the throne saying, look, God's dwelling place is now among the people, and he will live with them, and they will be his people, and God himself will be with them and be their God. उसमें लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। It is filled with so much of stuff in that verse. और इतनी सारी बातें उस वचन में भरी हुई है। And he says, I will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them and be their God. और उसमें लिखा है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच रहेगा, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा उनका परमेश्वर बनकर। That was God's desire. और यह ही परमेश्वर की इच्छा रही है। But we know as we read the Bible, sin ruined that relationship. लेकिन जैसे हम जानते हैं बाइबल के द्वारा पाप ने उस रिश्ते में खराबी कर दी। Sin really separated that relationship, that temple that was built. The sin came and destroyed it. और पाप की वजह से वह संगति टूट गई, वह रिश्ता टूट गया और वह मंदिर एक प्रकार से विनाश हो गया। But through Moses, God showed a replica of it in the wilderness. And he says, this is how, you know, I'm going to come and dwell among you. So God commanded Moses to build a tabernacle. और मूसा के द्वारा हमें वहाँ एक प्रकार से परमेश्वर के भवन की परछाई देखने को मिलती है, एक प्रतिबिंब देखने को मिलता है, कैसे परमेश्वर लोगों के बीच में निवास कर सके। And again God, you know, came down with the Shekinah glory. The presence of God was so powerful in the tabernacle. और उस निवास स्थान में जब परमेश्वर की महिमा स्वर्ग से धरती पर उस निवास स्थान में आई, तब हमें पता चलता है कैसे परमेश्वर की महानता वहाँ पर।
And we see later when God chose David as a man after his own heart, God spoke to David through the prophet and he shared his desire to see a temple being built for his glory. और फिर हम आगे देखते हैं दाऊद के साथ परमेश्वर ने अपने हृदय की बातें बताई एक भविष्य वक्ता के द्वारा उसको मंदिर बनाने के लिए जब प्रोत्साहित किया गया तब हम वही बात देखते हैं। But David got too busy making the kingdom of Israel secure and he neglected that call to build the temple. और लेकिन बात यह ऐसी हुई कि दाऊद अपने उस राज्य बसाने में उस कार्य में काफी व्यस्त हो गया और मंदिर की बातों को लेकर शायद वह दूर रह गया। And so finally God got David's attention in the time of crisis. और अंत में हम देखते हैं कि दाऊद एक ऐसे मुसीबत के समय में वहां पर जान गया, परमेश्वर ने उसका ध्यान खींच लिया। So I want to just go through some of the aspects and I want you to just understand the importance of the temple. तो मैं बताना चाहता हूँ मंदिर का यह जो महत्व है उसके बारे में। Where it was built. कहाँ पर उसे बनाया गया? Is it important to know where the temple was built? क्या महत्वपूर्ण है जानना कि वो मंदिर कहाँ बनवाया गया? Yes, it is important. It says, it says God telling David, it says, you got to build this temple at the threshing floor of Arana, the Jebusite. और यह महत्वपूर्ण है जानना कि वो कहाँ पर बनाना है और वो यबूसी अर्नान का जो खलिहान था वहाँ पर वो मंदिर बनाया गया। 2 Chronicles chapter 3 verse 1 it says God is speaking to Solomon. It says the temple of the Lord must be built in Jerusalem on Mount Moriah, at the threshing floor of Arana the Jebusite. दो इतिहास के तीसरे अध्याय के पहले वचन में पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओर्नान के खलिहान में तैयार किया था। Yeah. Why it is so? क्यों ऐसा? If you look back at the history, you will know David made a very foolish and a sinful thing before God by taking the census of the army. यह इसलिए हुआ एक प्रकार से अगर आप पीछे मुड़कर पढ़ोगे देखोगे तो दाऊद ने एक मूर्खता का कार्य किया। उसने अपनी सेना में कितने लोग हैं उसका गिनती किया और परमेश्वर की नजर में वह बड़ा पाप रहा। And God didn't like it. परमेश्वर को वो पसंद नहीं हुआ। Because I think David reached a place of pride and arrogance and he says, let's just see the strength. Let's just see the strength of our army. और दाऊद जो है एक प्रकार से वहां पर घमंड और अभिमान से भर गया और उसने सोचा कि चलो हमारी ताकत कितनी है, हमारा बल कितना है उसे देखेंगे। He forgot it was God who gave him victories. और वो भूल गया था कि परमेश्वर है उसने उसे विजय दिया था। He stopped depending upon the Spirit of God but began to depend upon the flesh, the strength of man. और वो परमेश्वर की ताकत को भूल गया लेकिन मनुष्य में कितना बल है ताकत है उस पर वो निर्भर होने लगा। And the Bible says God was angry. और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर उससे असंतुष्ट हुआ। So in 1 Chronicles 21 we see God giving him 3 options. तो एक इतिहास के अध्याय में हम 2 इतिहास के अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे चुनौती दी, 3 चुनौतियां दी। God said, 3 years of famine in the land. परमेश्वर ने कहा करीबन 3 साल अकाल पड़ेगा देश में। Or 3 months being defeated and exploited by the enemies. या 3 महीने शत्रु का हमला तुम पर होगा और वह तुम्हारा विनाश करेंगे। Or 3 days of plague in the land. या 3 दिन की महामारी तुम्हारे and you देश see में। David choosing the last option of 3 days of plague in the land. और दाऊद ने जो तीसरा चुनौती था उसे स्वीकार किया कि राज्य में 3 दिन महामारी हो। He said it's better to fall into the hands of the merciful God. और उसने कहा यह सोचा कि यह अच्छा रहेगा हमारे लिए कि वो करुणाकारी परमेश्वर के हाथ में हम रहे। And we see 70,000 able men were dead in few hours time. और हम देखते हैं कि 70,000 सैनिक कुछ ही घंटों में वहां पर मर गए। Almost 5% of the army were wiped out.
करीबन 5% सैनिक है वो पूरी तरह तबाह हो गए। So as the angel of the Lord doing this destruction, bringing this destruction into Israel, and halfway through, it was about to enter Jerusalem, and David sees this angel. और वहां पर जो दूत है वह वहां पर हत्या करते जा रहा था, और इतनी बड़ी तैनात में हत्या होने के बाद जब दाऊद उसका दर्शन देखता है, दाऊद उसे देखता है, Angel of death was coming closer to Jerusalem, and it says David and the elders fell face down and repented before God. और यह मृत्यु का जो दूत है वो वहां पर आता है, तब दाऊद और उसके प्राचीन सब उसके सामने घुटने टेक कर गिर जाते हैं। And something happened. और कुछ होता है वहां। Before the 3 days were ended, in the middle of it, the angel stops. और उस 3 दिनों के उस बीच के समय में वहां पर स्वर्गदूत है वो वहां रुक जाता है, थम जाता है। God relents and stops the plague. और परमेश्वर तरस खाता है और इस महामारी को रोक लेता है। I want to say, brothers and sisters, भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, in 2020, world has faced one of the deadliest plague, which caused the death of more than 20 or 25 lakhs of people. और यह जो महामारी 2020 में आई उसकी वजह से सारी दुनिया में करीबन 20 या 25 लाख तक लोग हत्या हुई, मर गए। And God is trying to get our attention. और परमेश्वर हमारा ध्यान उसकी ओर खींचने का The कोशिश कर रहा है। sin of mankind is increasing day by day, and God is trying to get our attention. और परमेश्वर एक दुनिया में एक प्रकार से पाप बढ़ते जा रहा है, और परमेश्वर हमारा ध्यान उसकी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। Will we turn to God as a result of what has happened? और जो हुआ क्या उसकी वजह से क्या हम परमेश्वर के वापस लौटेंगे? The plague was result of sin by God's people. और ये जो महामारी आई थी उस समय वह परमेश्वर के लोगों ने पाप किया उसकी वजह से आई। David sinned and the people of Israel sinned before God, and God sent the plague. और दाऊद ने पाप किया और इजराइल के राज्य के लोगों ने पाप किया, और उसकी वजह से परमेश्वर ने वहां पर महामारी The भेजी। pride and arrogance of man. और मनुष्य की घमंड और उसका अभिमान। The pandemic is a warning for all of us. और यह जो महामारी आई वह हम सब के लिए एक प्रकार से चेतावनी है। In a way, God is saying, I hate sin and I do not tolerate the sin of this world. और परमेश्वर एक प्रकार से कह रहा है कि यह जो पाप हो रहा है मनुष्य जाति में वो मुझे पसंद नहीं है। And He is also, waiting for God's people to humble themselves and fall on their face and repent and call on Him. और एक प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को लेकर चाहत रखता है कि वो सर झुकाएंगे, दीन होंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे। And I want to say, even in this hopeless time, there is hope. Even in this case in David, before the 3 days ended, the Bible says they fell face down and the angel of death stopped destruction. और इस ऐसे महामारी के समय में हमारे पास भी आशा है। यहाँ पर हम देखते हैं यह 3 दिन के दौरान बीच में जब दाऊद ने और उनके प्राचीनों ने परमेश्वर के सामने सर झुकाया और वहां पर महामारी रुक गई। God is in control, and He will, nothing continues forever. Everything has a limited duration. और परमेश्वर सारी बातों का नियंत्रण रखता है, सब उसके हाथ में है, जब चाहिए वह उसे रोक सकता है। The question is that will God's people pay attention to प्रश्न the ये है कि क्या परमेश्वर के लोग उस परमेश्वर के भवन मंदिर पर ध्यान देंगे? Will you build altars of worship so that God can bring peace? God can act on our behalf. क्या तुम आराधना की वेदी बनाएंगे ताकि परमेश्वर कुछ कार्य करेगा, परमेश्वर वहां पर शांति लेकर आएगा? The threshing floor of Arana spoke about God intervention. और अरनान के उस खलिहान की जो जगह थी वह परमेश्वर का वहां पर आने को लेकर है। It was the very place where Abraham sacrificed, was going to sacrifice his son Isaac.
और वह वही जगह है जहाँ पर अब्राहम अपने बेटे का बलि चढ़ाने वाला था। Is not far away from where Jesus was crucified. और वो जगह जहाँ पर यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया उससे ज्यादा दूर नहीं है। So it has a message. तो उसमें एक संदेश है। And those who are ears, the Bible says, let them listen. Let them hear what God has to say. और जिनके कान खुले हैं, जो बाइबल जिसे कहता है, उनको परमेश्वर की इस आवाज को सुनने दो। The Bible says Solomon, it was not David, but Solomon, the son of David, began, to build, and he built the temple of God. और बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने नहीं बल्कि उसके बेटे सुलेमान ने मंदिर बनाने को शुरू किया। Today, आज God is building his temple. परमेश्वर अपने मंदिर को बना रहा है। Jesus, the son of David, is building the temples of the Holy Spirit. और यीशु जो परमेश्वर का बेटा है, वह कलीसिया के द्वारा एक प्रकार से परमेश्वर का मंदिर बना रहा है। Like Solomon was called the son of David, Jesus called the son of David. He's building a beautiful edifice so that will proclaim the glory of God to the world. और सुलेमान जो दाऊद का बेटा कहलाता था, यीशु जो दाऊद का बेटा कहलाया जाता है, उसके द्वारा एक प्रकार से यह मंदिर और परमेश्वर की महिमा दुनिया की ओर हम प्रकट कर सकते हैं। Will you let him build this beautiful temple? क्या तुम उसे एक प्रकार से इजाजत दोगे यह सुंदर मंदिर बनाने के लिए? And as you look at, how it was built by Solomon, we see 4 aspects of that. और जैसे हम देखते हैं सुलेमान ने उसे बनाया, 4 बातें वहाँ हमें दिखाई And again, देती it हैं। helps us. और उसके द्वारा हमें मदद मिलती है। In chapter 2 of 2 Chronicles says Solomon decided to build. और 2 इतिहास के उस अध्याय में हम देखें सुलेमान ने उसको बनाने की तैयारी की। Chapter 3 it says Solomon started building. और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि उसने बनाने को शुरुआत की। Then in chapter 5 it says Solomon finished building. और 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि उसने मंदिर को बनाने में पूर्ण किया। And in chapter 7 it says Solomon dedicated the temple to God. और 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि सुलेमान ने मंदिर को परमेश्वर को अर्पित किया। It was not built in a haphazard way. वह ऐसा वैसा नहीं बनाया था। There was careful attention was given. और बहुत बड़ा ध्यानपूर्वक रीति से वो मंदिर बनाया There गया। was decision, there was vision to build the temple of God. वहाँ पर एक निर्णय लिया गया मंदिर बनाने को, वहाँ पर एक दर्शन दिया गया मंदिर बनाने को लेकर। When you hear the gospel, there is a decision that you make to follow Jesus and give yourself to Him and surrender yourself to Him. वहाँ पर एक निर्णय लिया जाता है जब आप यीशु के पीछे चलने के लिए निर्णय करते हो और अपने आप को पूरी तरह आप यीशु को दे देते हो। And it says there was a building process. He began to build. और वहाँ पर एक मंदिर बनने की बात दिखाई देती है, जैसे वो मंदिर बनाने को शुरू करता है। It's only the beginning. और यह तो सिर्फ शुरुआत है। And as you read the Bible, as you read how it is being built, we see there was so much of skill and there was so much of God's supernatural provision that was involved in building this temple. और जब हम इस मंदिर के बनने की बातों को देखते हैं तो देखने को मिलता है कि वहाँ पर कितना कौशल और कितना हुनर का इस्तेमाल किया हुआ है और सारी जो बातें जो जरूरत की बातें थी वो कैसे उपलब्ध होते गई। And it says it's finished building. God wants us to not only start well, but God wants us to finish well as well. और हम देखते हैं कि वह मंदिर पूर्ण भी हो गया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम सिर्फ शुरुआत अच्छे से करें बल्कि अंत भी अच्छे से करें। Then it says the temple was dedicated and the Holy Spirit came, the presence of God came, and the priest could not minister. It was filled with the Shekinah glory of God. और जब मंदिर पूरा हुआ तब हम देखते हैं वहां पर कि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा एक प्रकार से भर गया। शिकायना महिमा परमेश्वर की वहां पर दिखाई देने लगी। And as today we can look at our own life and in the light of the Old Testament and the New Testament. These are all process of being built. This temple being built for God.
और हम पुराने नियम में देखते हैं, नए नियम में भी हम देखते हैं कि यह एक प्रकार से इस मंदिर को बनाने की बातों को लेकर है। You know, temple without the spirit is no use. और मंदिर जिसमें आत्मा नहीं है वह किसी काम का मंदिर नहीं है। You know, it just remains a building. और बस वो एक इमारत रह जाती है। What makes the difference is the presence of God. और वो फर्क क्या होता है जब परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आती है। You know, what made the difference to the temple for the next 400 years was the presence of God. और वहां पर आने वाले 400 साल के लिए जो फर्क की बातें वहां पर हुई वह है परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी। People from all over the world came. और सारी दुनिया भर के लोग वहां उस मंदिर में And आने they के made लिए prayers there. वहां पर प्रार्थनाएं की उन्होंने And they saw amazing things. और अद्भुत बातें होते हुए उन्होंने देखी। So there was careful attention. तो वहां पर बहुत बड़े बारीकाई से ध्यान दिया गया। What happened in the temple? तो मंदिर में क्या हुआ? They were 24/7 worship. और वहां पर 24 घंटे वहां पर परमेश्वर की आराधना होती There were थी। sacrifices, there were prayers being offered. वहां पर बलिदान चढ़ाया गया, वहां पर प्रार्थनाएं दी गई। You know, God meeting with man and man meeting with God. परमेश्वर मनुष्य से मिला और मनुष्य परमेश्वर से मिला। And today, that is what God wants us to do in our own life. और आज परमेश्वर वही बातें हमारे अपने जीवन में करना चाहता है। You know, not just once in a week, 2 hours on a Sunday, on a daily basis, we meet with God. और सिर्फ रविवार को 2 घंटे हम परमेश्वर से नहीं मिलना है, बल्कि प्रतिदिन हमारे दिन के हर समय में हम परमेश्वर से मुलाकात करते रहना है। As we encounter God, people who come across our way, they encounter God because this is the temple of the Holy Spirit. और जैसे हम परमेश्वर के साथ एक प्रकार से सामना करेंगे, आमना सामना हो जाएंगे और उसके साथ मुलाकात करेंगे, तब हम परमेश्वर को एक प्रकार से उसके करीब आएंगे, उसे समझ पाएंगे। We live out the gospel as we worship God on a daily basis. और एक प्रकार से हम वो सुसमाचार प्रतिदिन जीते हैं जैसे हम इन बातों को करते आगे जाते हैं। Whatever we do it for the glory of God. हम जो भी करते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। You know why the temple was so significant? तो मंदिर इतना महत्वपूर्ण क्यों था? And we just will come back to the scripture that we read. और हम उस वचन को वापस देखेंगे। You know, Hezekiah kind of understood the secret of the temple of God. और हिजकिय्याह राजा उसे समझ में आया एक प्रकार से मंदिर का रहस्य। So he opened the temple. तो उसने मंदिर के दरवाजे खोल दिए। And he restored worship there. और उसने वहां पर आराधना पुनर्स्थापित की। And he restored prayers and sacrifices. और उसने प्रार्थनाओं की शुरुआत की और उसने बलिदान शुरू किया। And as he did that, it says there was such favor of God. और जैसे उसने वो किया परमेश्वर का कृपा वहां पर देखने को मिला। And I want to say to you, brothers and sisters, as we open our hearts, open the doors of the temple, as we let God come in, I want to say victory will be ours. और जैसे मैं बताऊं आपको, हम अपने मंदिर को एक प्रकार से हमारे हृदय के दरवाजे खोलेंगे, जब परमेश्वर को वहां पर आने देंगे तो हम भी उस सफलता को देख सकते हैं। And the Bible says in the same passage, it's they consecrated themselves, the priests consecrated, the Levites, the king, the people, the elders, they all consecrated themselves, they set apart themselves to serve God and reject every evil and all the idolatry. और वहां पर देखते हैं हम, वहां पर जो याजक थे, जो लेवी थे, जो वहां के सारे लोग थे, राजा थे, उन्होंने सब ने एक प्रकार से अपने आप को शुद्ध किया, अपने आप को पवित्र किया, अपने आप को परमेश्वर को अर्पित कर दिया। And I want to say to you this morning, और इस सुबह मैं आपको यह बताना चाहूंगा, 2021, 2021 आने वाला साल, will you open the temple doors? क्या तुम अपने
मंदिर का दरवाजा खोलोगे? Will you let the Holy Spirit in? क्या तुम उस पवित्र आत्मा को प्रवेश करने के लिए मदद करोगे? Will you consecrate yourself? Will you make a decision? It says, I want to rebuild. I want to build and I want to rebuild this temple for the glory of God. क्या तुम अपने मंदिर को पवित्र बनाओगे या अपने मंदिर को एक प्रकार से अर्पित करोगे और यह मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर से मदद लोगे? Will you allow the glory of God to permeate every aspect of your life? और परमेश्वर की महिमा का प्रभाव तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में होने के लिए क्या उसे आप इजाजत दोगे? As we build our altars, I want to say we will be able to stop the plague and we will be able to see the end time revival like never before. और जैसे हम अपनी वेदियां बनाएंगे, जैसे हम इस जागृति की ओर बढ़ेंगे, हम देखेंगे जागृति आएगी और यह महामारी थम जाएगी। In Hezekiah there was repentance and there was cleansing. और हिजकिय्याह के जीवन में हम देखते हैं वहां पर पश्चाताप था, वहां पर पवित्र होने की बातें थी। And in 2 Chronicles, we know the famous verse of 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and turn from their wicked ways. It's in that context. It says, when God's people come back to God, God will heal their land. और 2 Chronicles 7:14. 2 इतिहास के 7वें अध्याय के 14वें वचन में वहां पर लिखा है, जब मेरी प्रजा के लोग जो अपने कहलाते हैं दीन होकर मेरे दर्शन की खोजी होंगे तब और बुरी चाल से फिरेंगे, तब मैं स्वर्ग से उनकी सुनकर उनको ज्यों के त्यों कर दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। And God will heal the land और परमेश्वर देश को चंगा करेगा if His people turn to Him अगर उसके लोग उसके पास बढ़ेंगे तब, and we restore worship. और आराधना को पुनर्स्थापित करेंगे। When we spend time on a daily basis before God, जब हम प्रतिदिन परमेश्वर के सामने समय बिताते हैं, and if you read the 2 Chronicles, it say all these kings who saw the favor of God, the Bible says they found the book of the law and they began to read and they began to obey what is there in the book of the law, and they saw breakthrough. और यह जो इतिहास के किताब में जो बातें लिखी है वो प्रार्थना करने लगे, वो परमेश्वर का वचन पढ़ने लगे और आराधना करने लगे और परमेश्वर ने वहां पर फिर से जागृति लाई। Coming back to the word of God. और परमेश्वर के वचन को वापस उस पर जाना। And as we obey the things that God speaks to us, we will see breakthrough. और जैसे हम आज्ञा पालन करते हैं, जो परमेश्वर बातें हमें करने के लिए कहता है, हम देखेंगे सफलता को। As we use the gift, it says the priests and Levites were appointed to minister on a daily basis. As we use our gift God has given to us, the temple will be rebuilt. और जैसे हमारे वरदानों का हम इस्तेमाल करने लगेंगे, जैसे वहां पर देखते हैं याजक और लेवी जो वरदानों को दिया था उसका इस्तेमाल करने लगे, प्रार्थनाएं और वो सारी बातें करने लगे, परमेश्वर वहां उन्हें पुनर्स्थापित करने लगा। Hallelujah. हालेलुया। And there was sacrificial giving, they gave. और एक प्रकार से वो बलिदान पूर्वक बातों को देते थे, उन्होंने दे दिया। The Bible says finally they had to tell them to stop, it is too much, stop. और अंत में लोगों को कहना पड़ा कि अभी बस हो गया, बहुत सारा आ गया है। There was reckless giving. और उन्होंने एकदम खुलकर सारी बातों को दे दिया। That was to the ministry. That was ministry to the world. Just they gave themselves to the purposes of God. और वो सेवा के लिए, वो सेवा करने के लिए वो सारी बातें उन्होंने दे दी, परमेश्वर के कार्य को सेवा करने के लिए सब दे दिया। So I want to ask you, तो मैं आपको पूछना चाहता will हूँ, you pay attention to the temple of God? क्या तुम परमेश्वर के मंदिर पर ध्यान दोगे? It's not a building. और वो इमारत नहीं है, It's not a place. वह कोई जगह नहीं है, It is you, your body. और वो आप है, आपका शरीर है। And as you open the doors, और जैसे तुम उस द्वार को खोलेंगे and as you let the Holy Spirit come in, do all that He wants us to do, और जैसे तुम पवित्र आत्मा को इजाजत दोगे तुम्हारे अंदर आने के लिए, और वो जो कहेगा वो जैसे करोगे, I want to tell you, मैं आपको बताना चाहूंगा, God will be glorified. परमेश्वर को महिमा मिलेगी। Not only we will be blessed, और हम आशीष नहीं पाएंगे, सिर्फ हम नहीं आशीष पाएंगे,
we will become an instrument of blessing to others. हम दूसरों के लिए आशीष का जरिया बनेंगे। I want to end with this. और इससे मैं खत्म करने वाला हूँ। The book of Chronicles, और इतिहास का किताब, in Second Chronicle, दूसरे इतिहास की किताब में, it ends with a very sad note. और उसका जो समाप्ति है वो बड़ा दुखद ऐसा है। 2 Chronicle 36 verse 19. और दो इतिहास के 36वें अध्याय का 19वां वचन, It says they set fire to God's temple and broke down the wall of Jerusalem. They burned all the palaces and destroyed everything of value there. वहाँ पर देखते लिखा है, और कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहर पनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया। This magnificent temple was destroyed by the Babylonians. और बाबुल के उन लोगों ने यह भव्य ऐसा मंदिर उसको तबाह कर दिया। Almost after 450 years. करीबन 450 साल के बाद, Almost 14 years, 14 generations later. और करीबन 14 पीढ़ियां उसके दौरान हो गई। Was it the end? क्या वह अंत था? Ezra and Nehemiah started rebuild. और इज़रा और नहम्याह ने उसको फिर से बनाने को शुरू किया। That too was destroyed again. और वह भी, उसका भी विनाश हो गया बाद में। It only shows that it is never about the building, but it's about the presence of God. तो यह बात हमें इस बात को समझाता है कि वह वो इमारत को लेकर नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर है। That's why Jesus said while he was on earth, he said in John 2 verse 19 and 21, it says, destroy this temple and I will raise it in 3 days. और इसलिए यीशु इस इमारत की, मंदिर की बात नहीं करता है, बल्कि शरीर की बात करता है। यीशु यूहन्ना के दूसरे अध्याय के 19 और 21वें वचन में लिखता है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। Verse 21 it says, but the temple he was spoken of was his own body. और 21वें वचन में वहाँ पर लिखा है, परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विषय में कहा था। It's all about Jesus. और यह सब यीशु को लेकर है। It's all about the presence of God. और ये सब जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर है। It's all about the presence of God dwelling in us in this temple. और यह सब उस बात को लेकर है, परमेश्वर की उपस्थिति, उसका पवित्र आत्मा हमारे इस शरीर में, इस मंदिर में ठहरने को लेकर। And building this temple for the glory of God and for the purposes of God. और इस मंदिर को परमेश्वर के मकसदों के लिए, परमेश्वर की इच्छाओं के लिए बनाना। If it is broken and shattered, He will rebuild it. अगर वो टूटा गया है, तबाह हो गया है, तो परमेश्वर उसे फिर से बनाएगा। That's the story of the Bible. और वही बाइबल की कहानी है। And some of us need to come back to God and say, God, rebuild this temple. और हमें से कुछ है वह परमेश्वर की ओर मुड़कर कहना है, परमेश्वर हमें फिर से बना। We may have to dedicate ourselves and say, God, I open my doors today. Will you come in? और हमें से कुछ है जो कहेंगे, मेरे जीवन का दरवाजा मैं खोल रहा हूँ, परमेश्वर तुम आओ। God wants to say, परमेश्वर कहना चाहेगा, your body is the temple of the Holy Spirit. तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। It's important how we take care of this temple and how we actively involve ourselves with the Holy Spirit. और यह महत्वपूर्ण है कि हम इस मंदिर की कैसे निगरानी करते हैं, कैसे देखभाल करते हैं। And will you respond to God today? क्या तुम परमेश्वर को आज प्रतिक्रिया दोगे? Like Hezekiah, जैसे हिजकिय्याह ने किया। the first day of the first month of the first year of his reign, he opened the doors of the temple. और उसने अपने राज्य करने के पहले वर्ष के पहले महीने की पहले दिन ही वो बात कर दी। He opened the temple doors. उसने मंदिर के दरवाजे को खोल दिया। As we begin this new year, will you open the doors of your temple and say, God, I want to see you glorified in me. और जैसे इस 2021 साल की शुरुआत में हम कहेंगे कि परमेश्वर, मैं मेरे जीवन का दरवाजा खोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारी महिमा हमारे अंदर आए। I want to give my life for something that will last forever.
मैं मेरा जीवन उस चीज के लिए देना चाहता हूँ जो हमेशा के लिए रहेगा। I want to see you glorified. मैं चाहता हूँ परमेश्वर तुम्हें महिमा मिले। I want to see fruitfulness in my life. मेरे जीवन में मैं सफलता को देखना चाहता I हूँ want to be an influence in this world. और मैं इस दुनिया में एक प्रभावशाली बनना चाहता I हूँ want to bring healing to this land. और इस भूमि में मैं चंगाई लाना चाहता हूँ। So I come to you. तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ। I open my doors. मैं मेरे हृदय के दरवाजे को खोलता हूँ। Come in, Lord. परमेश्वर तू आ, Fill me with your spirit. तेरे आत्मा से मुझे भर दे। I want to enjoy, you as you dwell in me. I want to enjoy that fellowship with you. और जैसे तू मेरे अंदर आता है, मुझे उस संगति का लाभ उठाने दे, मुझे उसे आनंद लेने दे। Help me, Lord. मुझे मदद कर Now परमेश्वर। let's just pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father God, पिता परमेश्वर, we ask you, हम मांगते हैं, Lord, will you help us to open the doors क्या तू हमें मदद करेगा उन दरवाजों को खोलने के लिए of this temple और इस मंदिर के दरवाजे which you are building, Lord. और वो मंदिर जिसे तू बना रहा है। Lord, we ask you to give us grace. और परमेश्वर हम मांगते हैं तू हमें अनुग्रह दे, Lord, fill us with your spirit. तेरे आत्मा से हमें भर दे। Lord, it will not be just little activities in a week, Lord, but daily there will be fellowship, Lord God. और बस कुछ काम कुछ दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन हम उस कार्य में लगे रहेंगे, पवित्र आत्मा से So भरेंगे। I give myself to you, Lord. तो आज मैं अपने आप को परमेश्वर तेरे हवाले कर देता हूँ। If you're doing that, will you just lift your hand and say, I give myself to you? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो क्यों ना अपने हाथों को उठाए और कहे, प्रभु मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। Lift your hands to God. अपने हाथों को परमेश्वर की ओर बढ़ाए। I give myself to you. मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ। I open the doors. मैं दरवाजों को खोलता हूँ। Will you come? क्या तुम आओगे? Will you rebuild? क्या तुम फिर से बनाओगे? Will you help me to throw away all other gods and all idols or anything that is defiling this temple? और वो सारी बातें या वो सारी मूर्तें या सारी जो अनचाही चीजें जो है, क्या तुम उसे बाहर निकाल दोगे? Help me, Lord. मुझे मदद करना प्रभु। Help me, Lord. प्रभु मुझे मदद कर, In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित